آتش فشاں بک 2 پارٹ 31 آواز لبابہ حیدر پیشکش میر کارواں۔ اور پھر اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں، جانکی اور تھالوپ اس کی جیپ پر سوار گولڈن ٹرائنگل کی طرف جا رہے تھے۔ سونیا کو اس لیے کاٹیج میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا کہ گزشتہ رات اس کانسٹیبل نے ہوش میں آنے کے بعد بتا دیا تھا کہ چوروں کی طرح اپنے کاٹیج میں گھسنے والی سونیا تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا حلیہ وہ ٹھیک سے بتا نہیں سکا تھا۔ پولیس نے رات ہی کو سونیا کی تلاش شروع کر دی تھی اور اب بھی اسے پورے شہر اور نواحی علاقوں میں تلاش کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اس وقت سونیا کا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں تھا۔ رنگولی کو بھی سونیا کی وجہ سے کاٹیج میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم دریائے مائے خام پر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سیاحوں کے لیے ایک بہت بڑی تفریح گاہ بھی بنی ہوئی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دریائے میکانگ اور دریائے مائے خام اس علاقے میں اس طرح ملتے ہیں کہ انگریزی کے حرف وائی کی شکل بن جاتی ہے، اور اس حرف کے دائیں طرف کی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی لکیر دریائے میکانگ ہے جو تھائی لینڈ اور لاؤس کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف مائے خام ریور تھائی لینڈ کی حدود میں ٹرائبل سینٹر کی طرف جا کر 2-3 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے مقام میں اتصال سے جو تکون بنتی ہے وہی دراصل گولڈن ٹرائنگل ہے جو آگے جا کر کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک طرف برما اور دوسری طرف لاؤس کے کچھ سرحدی علاقے بھی اس تکون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے سیاحوں کی سہولت کے لیے دریائے مائے خام کے کنارے پر ایک بہت بڑی تفریح گاہ بنا دی تھی۔ یہاں کئی اچھے ریسٹورنٹس اور کاٹیجز بھی تھے۔ سیاح یہاں آ کر دریا کے دوسرے کنارے سے شروع ہونے والے گولڈن ٹرائنگل کے علاقے کو دیکھتے اور تصویریں کھینچتے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ انہوں نے گولڈن ٹرائنگل نام کے اس خطے کی جھلک دیکھی ہے جہاں سے دنیا بھر کو ہیروئن اور دیگر منشیات کا زہر سپلائی کیا جاتا ہے۔ 2-3 دن سے حالات چونکہ کچھ بہتر تھے، اسی لیے یہاں بھی کچھ رونق تھی۔ اندرون ملک اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاح ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے گولڈن ٹرائنگل کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ریسٹورنٹ کے سامنے وسیع و عریض چبوتروں پر اور ٹیرس پر بیٹھے دوربینوں سے اس طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں دریا کے کنارے پر 2-3 گھاٹ بھی تھے جہاں دریا کی سیر کے لیے موٹر بوٹس دستیاب تھیں۔ یہاں دریا کا پاٹ 1000 میٹر سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ دریا خاصا گہرا اور بہاؤ بہت تیز تھا۔ بہاؤ کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر آگے جا کر یہ دریا میکانگ ریور سے جا ملتا تھا۔ میں، جانکی اور تھالوپ جیپ سے اتر کر ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ ہمارا انداز ایسا تھا جیسے ہم سردار کے مہمان ہوں اور وہ ہمیں سیر کرانے کے لیے یہاں لایا ہو۔ ایک آدمی تھالوپ کو دیکھ کر تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا۔ وہ سردار کو پہچان گیا تھا۔ وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس سے ملا اور پھر ہمیں اپنے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اندر بیٹھنے کی بجائے ہم نے باہر ٹیرس پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ مالک ایک ویٹرس کے ساتھ مشروبات لے کر آ گیا۔ وہ تھالوپ کو اپنا مہمان بنا کر بہت خوش تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا تو تھالوپ نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے پہاڑیاں اور گھنا جنگل ہے۔ یہاں جنرل کھوراٹ کے آدمی 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں۔ یہاں سے گولڈن ٹرائنگل کی زمین پر قدم رکھنا ممکن نہیں۔ البتہ وہ خاموش ہو کر اس کشتی کی طرف دیکھنے لگا جو سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بڑی کشتی تھی، اس میں انجن بھی لگا تھا اور رنگ برنگے بادبان بھی تھے۔ کشتی میں تقریباً 20 افراد سوار تھے۔ ان میں عورتیں، مرد اور بچے سبھی لوگ تھے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرے تھے، کچھ لوگ آنکھوں سے دوربینیں لگائے ہوئے تھے۔ 2 جوان عورتیں ایسی تھیں جن کے پاس مووی کیمرے تھے۔ وہ گولڈن ٹرائنگل کی فلم بنا رہی تھیں۔ کوئی کشتی والا عام طور پر دریا کی نصف چوڑائی عبور نہیں کرتا، مگر اس کشتی پر سوار سیاح شاید بوٹ مین کو دوسرے کنارے کے زیادہ سے زیادہ قریب جانے پر مجبور کر رہے تھے تاکہ گولڈن ٹرائنگل کا زیادہ قریب سے نظارہ کر سکیں اور واضح تصاویر کھینچ سکیں۔ لیکن وہ کشتی جیسے ہی دریا کی نصف چوڑائی سے ذرا آگے بڑھی، دوسرے کنارے پر گھنے جنگل سے فائرنگ ہونے لگی۔ لائٹ مشین گن سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ کوئی فائرنگ کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے درختوں کی شاخوں نے گولیاں اگلنی شروع کر دی ہوں۔ گولیاں کشتی کے آس پاس دریا کے پانی میں گر رہی تھیں۔ کشتی میں موجود لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر کشتی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ وہ مختصر سا چکر کاٹتی ہوئی بہاؤ کی سمت جا رہی تھی۔ اب وہ دریا کی نصف چوڑائی سے ادھر آ گئی تھی۔ جنگل سے فائرنگ بند ہو گئی۔ یہ کشتی والوں کے لیے وارننگ تھی۔ اگر کشتی مزید آگے بڑھتی تو گولیاں پانی کے بجائے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشانہ بناتی۔ تھالوپ نے کہا، کیا 24 گھنٹے؟ ہاں، 24 گھنٹے۔ جنرل کھوراٹ کے محافظ 24 گھنٹے دریا کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کئی تالا آزماؤں نے رات کی تاریکی میں بھی دریا پار کرنے کی کوشش کی، پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جگہ سے دریا پار کر کے گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ؟ ہاں، راستہ گرچہ خطرناک بھی ہے، مگر 1% کامیابی کا امکان ہے اس راستے میں۔ میں رسک لینے کو تیار ہوں سردار۔ تو پھر آؤ، تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنی کرسیاں چھوڑ دی۔ ہم پارکنگ ایریا میں آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ تھالوپ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ کسی جگہ پر لے جائے گا، لیکن جب اس نے جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
कहाँ जा रहे हो? बैठो, पता चल जाएगा। हम जीप में बैठ गए। थालोब ने स्टीयरिंग संभाल लिया। जीप पार्किंग एरिया से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मैं अब भी न समझ सका था कि वो हमें कहाँ लिए जा रहा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जीप सड़क से हटकर बाएं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता निहायत पुरपेच और खतरनाक था। दोनों तरफ गुंजान झाड़ियां थी जिनसे रास्ता कुछ और तंग हो गया था। ऊपर से दरख्तों की शाखें भी नीचे तक झुकी हुई थी जो जीप से टकरा रही थी। बास जगह तो दरख्तों की झुकी हुई शाखें और झाड़ियां इस तरह फैली हुई थी जैसे रास्ता बंद हो गया हो, मगर थालोब जीप को आगे बढ़ाता ले गया। तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करके उसने जीप रोकी और हम नीचे उतर आए। थालोब के पीछे हम चलते रहे। यहाँ पैदल चलने का भी कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। हम दरख्तों की झुकी हुई शाखों और गुंजान झाड़ियों में रास्ता बनाते हुए चलते रहे। फिर एक जगह रुक गए। थालोब इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। वो हमसे तकरीबन 10 फुट आगे था। मेरी तरफ घूमते हुए उसने अचानक ही पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल का रुख मेरी खोपड़ी की तरफ था। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। थालोब के मुंह से सांप जैसी फनकार निकली। उसके होठों पर बड़ी खौफनाक सी मुस्कुराहट थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में हजारों ख्यालात और वसवसे आ गए। तो ये था सरदार थालोब का असल रूप। शायद वो भी जनरल खोराट का एजेंट था। अब तक उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वो सब ढोंग था, और जब मैंने गोल्डन ट्रायंगल जाने का फैसला कर लिया तो उसने मुझे भी खत्म करने की ठान ली थी। इस वीराने में मुझे और जानकी को मौत के घाट उतार दिया जाए तो हमारे बारे में किसको पता चलेगा। मौत को इतना करीब देखकर मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होने लगा। मेरी जीन्स की हिप पॉकेट में भी पिस्तौल मौजूद था। अगर मैं पिस्तौल निकालने की कोशिश करता तो मेरा हाथ जेब तक पहुंचने से पहले ही थालोब मुझे गोली मार देता। मैंने आहिस्तगी से गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा। वो मुझसे 4 फुट के फासले पर खड़ी थी। खौफ से उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। थालोब एक बार फिर गुर्राया और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज गूंजी। मैं सख्ते की सी कैफियत में खड़ा रह गया। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। शायद ये तनबीही फायर था। थालोब ने पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुकाया और मुस्कुराते हुए बोला, पीछे मुड़कर देखो। मैं तेजी से पीछे घूम गया और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरे पीछे सिर्फ 1 फुट के फासले पर दरख्त की एक झुकी हुई मोटी शाख पर सब्ज रंग का तकरीबन 4 फुट लंबा सांप लटका हुआ था। उसका सर थालोब की गोली ने उड़ा दिया था। सांप की दुम दरख्त की शाख से बल खाकर लिपटी हुई थी और बाकी जिस्म भी अटता हुआ सा हवा में लहरा रहा था। और फिर शाख से उसकी दुम के बल खुलने लगे और वो भद की आवाज से जमीन पर गिर पड़ा। अगर ये सांप तुम्हें डस लेता ना तो तुम 1 सेकंड से भी कम वक्फे में मारे जाते। इसका जहर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। ये खतरनाक सांप इस इलाके में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जब ये अपने शिकार को देख लेता है तो छोड़ता नहीं है। ये हवा में भी उड़ता है, जमीन से 5-6 फुट ऊंची और तकरीबन 15 फुट लंबी छलांग लगाता है। ये तुम पर हमला करने की तैयारी कर ही रहा था। अगर मैं ना देख लेता ना तो तुम इस वक्त हमसे बहुत दूर जा चुके होते। थालोब बोलता रहा और मैं सोचता रहा। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासुरात थे। हम एक बार फिर चल पड़े और एक बार फिर रुक गए। पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर कुछ ही देर बाद हम दरिया के किनारे पर झाड़ियों में बैठे सामने देख रहे थे। यही वो जगह थी जहां दोनों दरिया अंग्रेजी के हर्फ वाई के नुक्ता इत्साल पर एक दूसरे से मिलते थे और यहीं से तिकोन बनकर आगे को फैलती चली गई थी। बहुत खूबसूरत मंजर था। यहाँ दोनों दरियाओं के मिलने की वजह से पार्ट बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। बाएं तरफ दरियाए मायखाम था और दाएं तरफ मैकांग, जिसके दूसरी तरफ लाओस की सरहद थी। जेरी इलाके की तरफ यह दरिया लाओस और थाईलैंड के दरमियान सरहदी लकीर बनाता चला गया था। वो छोटा सा जजीरा देख रहे हो? सरदार ने मैकांग के वस्त में उभरे हुए टापू नुमा उभार की तरफ इशारा किया। मैं गर्दन घुमाकर उधर देखने लगा। उसे जजीरा भी कहा जा सकता था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 200-250 गज से ज्यादा नहीं थी। वहां कद्दे आदम झाड़ियां और गुंजान दरख्त नजर आ रहे थे। इस जजीरे से गोल्डन ट्रायंगल तक पहुंचा जा सकता है आसानी से, लेकिन असल मसला इस जजीरे तक पहुंचने का है। क्यों? मुझे तो वहां तक पहुंचना बहुत आसान लग रहा है। ये तुम्हारी भूल है वजदान। मैकांग के दूसरे किनारे पर लाओस के फौजी गश्त करते हैं। उस जजीरे की तरफ जाने वालों को देखते ही गोली मार दी जाती है, और अगर इस तरह से दरिया पार करने की कोशिश की जाए तो नामुमकिन। जनरल खोराट थाई सरहद पर ज्यादा तवज्जो देता है। इस तरफ उसके मुसल्ला आदमी मौजूद रहते हैं, जबकि लाओस की तरफ से उसे कोई खतरा नहीं है। इस तरफ गश्त का भी ज्यादा इंतजाम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में उस जजीरे की तरफ से ही कोशिश की जानी चाहिए। उस तरफ से कामयाबी का 1% इम्कान हो सकता है। मैं देर तक उस छोटे से जजीरे की तरफ देखता रहा। हो सकता है इस जजीरे पर भी लाओस के फौजी या जनरल खोराट के आदमी मौजूद हो,
नहीं, ये जजीरा दरिया के अन वस्त में है, किसी मुल्क की सरहद में शामिल नहीं है। थाई और लाओस की हुकूमतों में यह मुआहदा है कि उनमें से किसी मुल्क के फौजी इस जजीरे को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरल खोराट से अगरचे इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है, लेकिन वो भी इस मुआहदे पर अमल कर रहा है। अलबत्ता कभी कभार उसके आदमी इस जजीरे पर आ जाते हैं। मैं एक बार फिर जजीरे की तरफ देखते हुए नजरों ही नजरों में उसका फासला नापने की कोशिश करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस जगह हम खड़े थे वहां से उस जजीरे का फासला 1000 मीटर से कम नहीं था, और वहां से गोल्डन ट्रायंगल वाला किनारा 500-600 मीटर के लगभग रहा होगा। मैं देर तक इधर उधर देखते हुए सूरत हाल का जायजा लेता रहा। इस जजीरे तक पहुंचने के लिए जाहिर है कश्ती की जरूरत होगी, और कश्ती का बंदोबस्त कैसे होगा? कश्ती का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि एक बार फिर सोच लो, अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। मैं फैसला कर चुका हूँ सरदार, दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। तो फिर ठीक है, आओ वापस चलें। हम झाड़ियों से निकलकर वापसी के रास्ते पर चलने लगे, और मुझे हैरत हुई कि जीप तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी थी। पहाड़ियों से निकलकर पुख्ता सड़क पर आकर थालोब ने जीप का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया। सरदार थालोब भी तकरीबन 1 घंटे तक हमारे साथ कॉटेज में रहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे तुम लोगों के लिए कश्ती और कुछ दूसरी चीजों का बंदोबस्त करना है। कल सुबह मुलाकात होगी। थालोब चला गया। उस वक्त रंगोली भी उसके साथ ही चली गई थी। अब हम तीनों उस कॉटेज में रह गए थे। मैं और जानकी एक बार फिर सोनिया को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो भी मेरी तरह इरादे की पक्की थी। वो अपनी जिद पर कायम रही कि वो हमारे साथ जरूर जाएगी। अगर हम उसे साथ ना लेकर गए तो वो अकेली ही गोल्डन ट्रायंगल में दाखिल होने की कोशिश करेगी, खास में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। सोनिया की जिद के सामने मुझे एक बार फिर हथियार डालना पड़े। हमने कल रात दरिया पार करने का प्रोग्राम बनाया था। थालोब ने कहा था कि इस दौरान वो हमारी रवानगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेगा। मैं महाराज को अपने इस प्रोग्राम से आगाह करना जरूरी समझता था। महाराज ही ने मुझे इस काबिल बनाया था कि आज मेरे दुश्मन मुझसे छुपते फिर रहे थे, और महाराज ही ने मेरे अंदर इतनी खुद-एतमादी पैदा की थी कि मैं अपने तौर पर बड़े से बड़ा फैसला कर सकता था। महाराज ने मुझे जो मिशन सौंपा था उसमें मैं सुरखरू हुआ था। अब मेरा सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माँ बाप के कातिलों से इंतकाम लेना। गोल्डन ट्रायंगल तो ऐसी जगह थी जहां हमारी ही तरह के इंसान बसते थे। मैं तो दारा और चीफांग के ताक़ुब में था, और वहां उनके ताक़ुब में मैं जहन्नुम तक जाने को तैयार था। ये मेरा अटल फैसला था, और मुझे यकीन था कि महाराज मेरे इस फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे। मैं टेलीफोन के करीब बैठा और महाराज का नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी, और इत्तेफाक से कॉल खुद महाराज ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फौरन ही असल मौजू की तरफ आना मुनासिब समझा, और महाराज को सोनिया, रंग संत और उसकी डायरी के बारे में बताने लगा। उस डायरी में कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं जिनसे सिलसिले में मालूमात हासिल करके रंग संत की तहरीर की तस्दीक या तरदीद हो सकती है। वो डायरी मैंने थालोब के हवाले कर दी है। वो 2-4 दिन में बैंकॉक आकर आपसे मुलाकात करेगा और डायरी आपके हवाले कर देगा। तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब वहां तुम्हारी जरूरत नहीं रही है। बैंकॉक में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। महाराज, वो दारा और उसके साथी गोल्डन ट्रायंगल की तरफ फरार हो गए हैं। कहना क्या चाहते हो? महाराज, आप जानते हैं दारा और उसके साथियों ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था, और चाचा प्रताप सिंह को भी आपकी इबादतगाह में गोलियों से छलनी कर दिया था। वो मुझे भी कत्ल करना चाहता था। आपने मुझे बचाया और पनाह दी। मैंने आपके सामने कसम खाई थी कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लोग लातादाद बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं। उन्होंने बैंकॉक में जो कत्ल गारत मचाई थी उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ भी ये लोग कई रोज तक आग और खून का खेल खेलते रहे हैं। मैं उन लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल खूंखार भेड़ियों का भेंट है। वहां जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मैंने आपसे तरबियत हासिल की है महाराज, मैं मौत से नहीं डरता। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप ये भी जानते हैं कि थाई उन खूंखार भेड़ियों के कब्जे में है। उसे मैं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। ठीक है सन, तुम कब जा रहे हो? कल रात। जानकी भी मेरे साथ जा रही है। सोनिया का जिक्र मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। महाराज ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैं तो जानकी को भी साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन थाई का तो यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। दारा वगैरह फरार हो चुके थे। पेड्रो भी मारा गया था, लेकिन पेड्रो का गिरोह तो मौजूद था। उस गिरोह के बहुत से लोग जानकी को अच्छी तरह जानते थे। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मेरा ख्याल था अगर मैं जानकी को साथ ले जाने से इनकार कर देता तो वो कभी भी ना मानती। जानकी को बहरहाल मेरे साथ जाना था, लेकिन मुझे सोनिया का अफसोस हो रहा था। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। वहां कदम कदम पर मौत हमारी मुंतजिर होगी। ये भी मुमकिन था कि उस सुनहरी तिकोन की जमीन पर कदम रखते ही हमें गोलियों से भून दिया जाए।
لیکن سونیا اس آگ میں کودنے کو تیار تھی۔ وہ دن گزر گیا اور پھر رات کے تاریک صاحب اپنے پر پھیلانے لگے۔ میرے لیے رات سب سے زیادہ اذیتناک ہوتی تھی۔ اس رات 2 بجے تک تو جانکی اور سونیا بھی جاگتی رہی اور پھر اپنے کمروں میں جانے کے بجائے وہیں قالین پر لیٹ کر سو گئی، اور میں صوفے پر نیم دراز سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو گھورتا رہا، جس کی سوئیاں غیر محسوس انداز میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا کچن میں آ گیا۔ کم سے کم آواز پیدا کرتے ہوئے میں نے کافی بنائی اور کپ لے کر خاموشی سے باہر لان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تاریکی میں ادھر ادھر گھورتے ہوئے میں کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ مجھے وہاں بیٹھے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ برآمدے کی طرف سے آہٹ سن کر میں چونکا۔ گردن گھما کر دیکھا تو جانکی برآمدے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ ہاں، ذہن اپسٹ ہو رہا ہے۔ مجھے جگا دیتے، میں کافی بنا دیتی۔ اگر تم پینا چاہو تو بنا لو۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہم گولڈن ٹرائنگل کے حوالے سے باتیں کرنے لگے کہ ہمیں وہاں کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ جنرل کھوراٹ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وہاں ہمیں سنگین ترین صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا، اور شاید وہ ہماری زندگی کا کٹھن ترین دور ہوگا۔ قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ اگر ہم وہاں چند روز بھی زندہ رہ گئے نا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے پر قدم رکھتے ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ یہی سب کچھ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ ان حالات کے پیش نظر کیا تم اپنے لیے وہاں جانا مناسب سمجھتی ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم یہیں رہ جاؤ، تھالوب کے پاس؟ اگر تم رک جاؤ تو سونیا کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں موت کے سارے میں اکیلے جانے دوں گی؟ میں، تم اور تھائی، ہم تینوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ سچائی کے لیے لڑتے ہوئے جان دے دیں گے، لیکن اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، تو اب ہمارے راستے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ اگر تم تھائی کو بھول کر اپنا پروگرام بدل دو تو میں بھی بینکاک واپس جانے کو تیار ہوں۔ اگر بینکاک میں ہمارے لیے اب بھی خطرہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے اور آرام سے زندگی گزار دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تھائی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اگر آج زندہ ہوں تو تھائی کی وجہ سے۔ میں اسے بھول جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تھائی کو بھول جاؤں گی یا تمہیں اکیلے موت کے منہ میں جانے دوں گی؟ بس اب اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ آج کے بعد میں سلسلے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ رات کے آخری پہر تک ہم لان میں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت پو پھٹ رہی تھی جب ہم لان سے اٹھ کر کاٹیج کے اندر آ گئے۔ سونیا قالین پر آڑی ترچی پڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا اور جانکی سونیا کے قریبی قالین پر لیٹ گئی۔ میرا ذہن اگرچہ اب بھی الجھا ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ سونے کے لیے مجھے زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی۔ میری آنکھ دوپہر 12 کے قریب کھلی۔ سونیا اور جانکی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ تھالوب 2 بجے کے قریب آیا تھا۔ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کر آیا جو اس مہم میں ہمارے کام آ سکتی تھی۔ ہاتھی دانت کے دستے والا خوبصورت خنجر، جس کے ایک طرف تیز دھار تھی اور دوسری طرف درانتی کی طرح باریک دندانے بنے ہوئے تھے۔ اس نے وہ خنجر سونیا کی طرف بڑھا دیا۔ میری تو خواہش تھی کہ تم یہیں رہو، لیکن تم بضد ہو تو ہم تمہیں روک نہیں سکتے۔ بہرحال یہ خنجر میری طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر رکھ لو، کام آئے گا۔ سونیا کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ کچھ دیر تک خنجر کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر متشکرانہ نگاہوں سے تھالوب کی طرف دیکھنے لگی۔ تھالوب نے ایک ویسا ہی خنجر جانکی کو بھی دیا تھا، مگر اس کا دستہ ہاتھی دانت کا نہیں بلکہ آبنوس کی لکڑی کا تھا۔ سونیا اور جانکی نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ رنگولی ان کی مدد کر رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنے اپنے بیگ میں 2 3 جوڑے کپڑوں کے رکھ لیے، اور وہ کچھ چیزیں بھی جو تھالوب لے کر آیا تھا۔ ان میں مہر بند خوراک کے کچھ ڈبے تھے۔ اگر ہم زندہ رہے تو یہ خوراک کم از کم 1 ہفتے تک ہمارا ساتھ دے سکتی تھی۔ تھالوب اور میں ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ آج شام تک کشتی اس جگہ پہنچ جائے گی جہاں ہم کل گئے تھے۔ میرا ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ وہ تم لوگوں کو دریا کے گولڈن ٹرائنگل والے کنارے پر اتار کر اس جزیرے پر واپس آئے گا اور 24 گھنٹے وہاں رکا رہے گا۔ اس دوران اگر تم لوگ محسوس کرو کہ تم لوگ آگے نہیں جا سکتے تو اسے سگنل دے دینا، وہ تم لوگوں کو واپس لے آئے گا۔ اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد تو واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ یہ فیصلہ تو تم اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد کرو گے۔ بہرحال اگر محسوس کرو کہ ہوا کا رخ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں میرا مشورہ ہے کہ نہیں سردار، اب میں کوئی مشورہ نہیں سنوں گا۔ البتہ کچھ باتیں جاننا چاہتا ہوں جن سے مجھے آگے چل کر کچھ فائدہ ہو سکتا ہو۔ مثلاً
जनरल खोराट कौन है? उसने इस इलाके पर कब्जा कैसे किया? जनरल खोराट वो खुद साख्ता जनरल है। बरसों पहले वो चीनी फौज में भर्ती हुआ था। जैसे तैसे करके सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे तक तो पहुंच गया, पर उससे आगे नहीं जा सका। वो अपने हल्के में बहुत बदतमीज आदमी समझा जाता था। अपने से सीरियन अफसरान के साथ बदतमीजी से भी बाज नहीं आता था वो। हुक्म अदूली, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उसे कई बार सजा हुई। फिर एक मरतबा यह इंकशाफ हुआ कि वो खुफिया तंजीम तरियाट का सरगर्म रुकन है। ये तंजीम उन दिनों हुकूमत के खिलाफ सरगर्म थी। खोराट ने एक मुख्तसर सा गिरोह बना लिया था और फौज में बदनज़मी फैला रहा था। यह इंकशाफ होते ही खोराट को हिरासत में ले लिया गया। फौजी कवानीन के मुताबिक उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया। उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, लेकिन वो अपने साथियों की मदद से फौजी हिरासत से भाग निकला। उसके गिरोह में 15-16 आदमी थे। खोराट उनका सरगना था। पकड़े जाने के खौफ से वो भागते रहे। उनका रुख कैंटन की तरफ था, जहाँ से वो हांगकांग जाना चाहते थे। हांगकांग बरतानिया के ज़ेर असर था और खोराट समझता था कि उसे सिर्फ हांगकांग में ही पनाह मिल सकती है, लेकिन उसे कैंटन में ही पता चल गया कि हांगकांग में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपना रुख बदल दिया और नांगपिन की तरफ बढ़ने लगे। खोराट ने अब वियतनाम में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया था, मगर उस तरफ भी रुकावटें थी। खोराट और उसके साथियों के पास जो थोड़ी बहुत रकम बची थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उनके पास एक वक्त की खुराक खरीदने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। खुराक के उसूल और दीगर ज़रूरियात के लिए उन्होंने लूटमार शुरू कर दी। उनके पास असलहा था। वो जिस बस्ती में भी जाते, 1-2 आदमी को कत्ल करके दहशत फैला देते और लूट मार करके आगे निकल जाते। इसी दौरान में कुछ और जराइम पेशा लोग भी उसके गिरोह में शामिल हो गए। लुटेरों और कातिलों का यह खतरनाक गिरोह लूट मार करता और रास्ते में छोटी छोटी बस्तियां उजाड़ता हुआ चिली के करीब दरिया मेकांग के किनारे पर पहुंच गया। ये दरिया चीन के बर्फपोश पहाड़ों से शुरू होकर चीनी के वसी और इस इलाके को सैराब करता चिली के करीब बर्मा की सरहद में दाखिल हो जाता है और फिर सियाम और लाओस की सरहदों को छूता हुआ कंबोडिया का सफर करते हुए जनूबी बहरा चीन में जा गिरता है। खोराट और उसके तकरीबन 40 मुसल्लह आदमी एक बड़ी बादगानी कश्ती पर सवार थे। वो कश्ती दरिया मेकांग में बहती हुई बर्मा की सरहद से निकलकर थाईलैंड की सरहद में दाखिल हो गई। यहाँ खोराट ने अपना सफर खत्म कर दिया। 2 दरियाओं के बीच में सैकड़ों मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये तिकोनी जरखेज खित्ता खोराट को पसंद आ गया। उस खित्ते में 3-4 छोटे छोटे कबाइल आबाद थे जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से अपने गुजर औकात कर रहे थे। खोराट और उसके मुसल्लह साथियों ने उन कबाइलियों को बर्मा की तरफ भगा दिया। जिन्होंने मज़ाहमत की, उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस इलाके में पोस्त के पौधे देखकर खोराट ने एक और मंसूबा बना लिया। पोस्त की काश्त के लिए इलाका तो बहुत जरखेज था। उसने अपने आदमियों की मदद से पोस्त की बाकायदा काश्त शुरू कर दी। कुछ इलाके में अपनी ज़रूरत के लिए सब्जियां, फल और अनाज भी पैदा किया जाने लगा। वो अफ्यून का दौर था। खोराट पोस्त की पैदावार से अफ्यून तैयार करके बर्मा, चीन के सरहदी इलाकों, लाओस और थाईलैंड में बड़ी मिकदार में अफ्यून सप्लाई करने लगा। 2 तरफ दरिया होने की वजह से तिकोनी खित्ता हर लिहाज से महफूज था। खोराट ने अपने गिरोह पर मुकम्मल कंट्रोल कर रखा था। 2-4 ने बाज़ मामलात में सर उठाने की कोशिश की तो खोराट ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया ताकि दूसरों को भी सबक हो जाए। खोराट हर वक्त मुसल्लह और फौजी वर्दी में रहता। उसने अपने नाम के साथ जनरल का इजाफा कर लिया। उसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लाओस, थाईलैंड, बर्मा और चाइना के जराइम पेशा लोग फरार होकर उसकी तरफ का रुख करने लगे। खोराट उन्हें खुशामदीद कहता। इस तरह उसकी ताकत में भी इजाफा होता चला गया। उसने उन ममालिक से कुछ ऐसे माहिरीन को भी लालच देकर बुला लिया जो बुनियादी तौर पर मुजरिमाना जहनियत के मालिक थे। इस तरह अफ्यून के अलावा हशीश, मार्फिन और दूसरी मंशियात भी तैयार होने लगी जो बड़ी मिकदार में सरहदी इलाकों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को स्मगल की जाने लगी। यहाँ पोस्त नहीं, सोना पैदा होता था और इसलिए इस इलाके को गोल्डन ट्रायंगल का नाम दे दिया गया। आसपास की हुकूमतों को जब खोराट की सरगर्मियों का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। जनरल खोराट बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। उसने पूरी फौज जमा कर ली थी जिनके पास जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद मौजूद था। गोल्डन ट्रायंगल आज एक छोटी सी ऐसी सल्तनत है जिसका जनरल खोराट बेताज बादशाह है। उसकी फौज में हसीन और जवान लड़कियां भी शामिल हैं जो सुनहरी तिकोन में ड्यूटी देने के अलावा हीरोइन और दीगर मंशियात की सप्लाई और सौदेबाजी के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के चक्कर लगाती रहती हैं। गोल्डन ट्रायंगल में एक बाकायदा हवाई अड्डा है। जनरल खोराट ने अपने 2-3 हवाई जहाज भी रखे हुए। दुनिया भर में फैली हुई मंशियात की तंजीमों के हवाई जहाज भी यहाँ आते जाते रहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में हीरोइन और दीगर मंशियात तैयार करने की कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें हर वक्त माल तैयार होता रहता है और जनरल खोराट के मंशियात के माहिरीन उन मंशियात को ज़्यादा से ज़्यादा नशावर बनाने के लिए रिसर्च में मसरूफ़ रहते हैं। जनरल खोराट तरियाट का सरबराह है जिसका सदर दफ्तर हांगकांग में है। दुनिया भर में मंशियात की सबसे बड़ी मंडी भी हांगकांग में ही है। जनरल खोराट गोल्डन ट्रायंगल से बहुत कम बाहर निकलता है, लेकिन महीने में एक मरतबा वो हांगकांग का चक्कर ज़रूर लगाता है
और किसी को पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब वापस चला गया। थालोप खामोश हो गया। मैं भी खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने अपनी बातों में 2-3 मरतबा तिरयाट का नाम लिया था। ये नाम मैंने 1-2 मरतबा बैंकॉक में भी सुना था, लेकिन अब पहली दफा इंकशाफ हुआ था कि ये कोई तंजीम है। ये तिरयाट किस किस्म की तंजीम है? तुमने अमरीकी ड्रग माफिया का नाम सुना होगा। तिरयाट उससे भी ज्यादा खौफनाक तंजीम है। तिरयाट दरअसल चीनी कौम परस्तों की तंजीम थी जो 1674 ईस्वी में मारज़ वजूद में आई थी। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रिवायत के मुताबिक इस तंजीम की बुनियाद 5 बुद्ध राहिबों ने चिंग के शहनशाह कांगसी से अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए रखी थी। शहनशाह कांगसी के दौर में रियासत सिलो के गवर्नर ने बगावत कर दी और शहनशाह का तख्ता उलट देने की धमकी दी, तो शहनशाह ने इस बगावत को कुचलने के लिए अपने हलीफों और हमदर्दों से मदद तलब कर ली। साबिक शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले चैंग क्वान नामी एक शख्स ने शहनशाह कांगसी की ये अपील सुनी तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। चैंग दुनिया को त्याग कर राहिब बन गया था और इन दिनों शाओलिन टेम्पल में बॉक्सिंग की तरबियत हासिल कर रहा था। सदियों पुरानी इस इबादतगाह में बुद्ध भिक्षुओं और राहिबों को बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ हरबी फन सिखाए जाते थे ताकि दौरान सफर वो लुटेरों और राहज़नों का मुकाबला कर सके। चैंग क्वान अपने 128 राहिब साथियों को लेकर शहनशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। ये तमाम राहिब बॉक्सिंग और दीगर हरबी फनून के माहिर थे। हर एक में खाली हाथ होने के बावजूद कई मुसल्लह हरीफों से मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद थी। चैंग क्वान और उसके साथी इस जुर्रत, बहादुरी और दानिशमंदी से लड़े कि सेलू का गवर्नर शहर का मुहासरा उठाकर नाकाम व नामुराद वापस चला गया। शहनशाह कांगसी चैंग क्वांग और उसके साथियों की बहादुरी और खिदमत से बहुत खुश हुआ। उसने चैंग और उसके साथियों को एजाजात से नवाजते हुए हुकूमत में कलीदी ओहदों की पेशकश की, लेकिन चैंग और उसके साथियों को ओहदों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शहनशाह का शुक्रिया अदा करके शाओलिन इबादतगाह वापस चले गए। शहनशाह ने चैंग और उसके साथियों को जो इज्जत बख्शी थी वो हुकूमत के बाज़ ओहदेदारों से बर्दाश्त नहीं हो सकी। 2 वज़रा तो हसद और रकाबत की आग में इस तरह जल रहे थे कि उन्होंने इन राहिबों के खिलाफ शहनशाह के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने शहनशाह को बावर कराया कि सरकारी ओहदे ठुकराकर उन राहिबों का वापस चले जाना बेमाने नहीं है। उन्होंने शहनशाह की कमजोरियों का अंदाजा लगा लिया है। अब वो तैयारी करके पहले जुनूब में बगावत करेंगे और फिर दारुल हुकूमत पर हमलावर होंगे। अपने वजीरों की बातों से मुतासिर होकर शहनशाह कांगसी ने शाओलिन टेम्पल को तबाह कर देने और चैंग क्वांग को और उसके साथियों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। शहनशाह के एक फौजी दस्ते ने शाओलिन टेम्पल को घेरे में लेकर आग लगा दी। इबादतगाह के अंदर इबादत में मसरूफ 110 राहिब जलकर राख हो गए। 8 राहिबों की एक टोली ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, मगर उनमें से 3 शहनशाह के फौजियों के हाथों मारे गए, जबकि 5 किसी न किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए। शाओलिन टेम्पल से फरार होने वाले 5 राहिब एक दरिया के किनारे पर पहुंचे, जहां उन्हें लोबान सुलगाने वाला 3 टांगों वाला एक ऐसा बर्तन मिला जिस पर चंग का तख्ता उलट दो, मंग सल्तनत बहाल कर दो के अल्फाज कंदा थे। उन 5 राहिबों ने उस नारे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। एक फौजी दस्ता उनके ताक़ुब में था। वो उससे बचने के लिए कश्ती पर दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। चंद कोस आगे एक और दरिया उनके रास्ते में हायल था। यहाँ भी एक फौजी दस्ता पहरा दे रहा था, लेकिन जिस तरह गैबी तौर पर वो पहले दरिया के किनारे पर उनको एक कश्ती मिल गई थी, इसी तरह उन्हें यहाँ भी गैबी इमदाद मिल गई और वो मुहाफिजों की नजरों में आए बगैर पुल के करीब से पत्थरों पर चलते दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए और तवील सफर की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद रियासत फोकैन के एक छोटे से शहर पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने तिरयाट तंजीम की बुनियाद रखी और चिंग सल्तनत का तख्ता उलटने और मंग सल्तनत की बहाली के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। उनका मिशन कामयाबी से जारी था। हजारों की तादाद में लोग तिरयाट तंजीम में शामिल हो रहे थे। चिंग शहनशाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पूरे सूबे फोकैन पर कब्जा करने के बाद 5 राहिबों ने अपनी तैयार करदा फौज के साथ चिंग पर हमला कर दिया, लेकिन सरकारी फौजों के हाथों हजारों लोग मारे गए। बगावत नाकाम होने के बाद 5 राहिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए ताकि लोगों को चिंग शहनशाह के खिलाफ भड़काकर इस किस्म की बगावतें कराई जाए और शहनशाह का तख्ता उलट दिया जाए। तिरयाट तंजीम का सफर जारी रहा। यह 100% कौम परस्तों की तंजीम थी जो मुख्तलिफ अदवार में जालिम और सफाक हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पैकार रही। हर खुफिया तंजीम की तरह तिरयाट के भी अपने कुछ उसूल थे। हर मेंबर को तंजीम के वज़ा करदा 36 उसूलों पर पाबंद रहने का हलफ उठाना होता था। तंजीम से गद्दारी की सजा मौत थी। ये तंजीम कई ग्रुपों में मुनक़सिम थी। हर ग्रुप अपने इलाके में सरगर्म था, लेकिन किसी न किसी तरह ये किसी न किसी एक मरकज़ के तहत मुत्तहद भी थे। 19वीं सदी के आखिर में बैरूनी ममालिक में भी इस तंजीम की लातादाद ब्रांचें कायम हो चुकी थीं। डॉक्टर सन यात सेन भी तिरयाट का एक सरगर्म रुकन था। 1911 में उसने चीन में अवामी जमहूरिया के क़याम की जद्दोजहद शुरू की तो बैरूनी ममालिक में तंजीम की ब्रांचों ने दिल खोल कर फंड्स फराम किए
اور پھر چین میں شہنشاہیت کے خاتمے اور عوامی جمہوریہ کے قیام کے بعد تریاٹ تنظیم کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تنظیم کی رکن سازی میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ تنظیم اس قدر طاقتور بن گئی کہ اسے پریشر گروپ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اعلیٰ سرکاری آفیسرز بھی اس کا ممبر بننے میں ہی اپنی عافیت سمجھنے لگے۔ بڑے بڑے صنعتکار اور تاجر بھی اپنے تحفظات کے لیے تریاٹ کے سائے میں آ گئے تھے۔ یہاں پر پارٹ 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 32 سماعت فرمائیں۔